One, two, three, start. Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn with Nidhi ma'am. So today was the set paper Maharashtra set on 15 June 2025. So we are going to see the expected answer key of paper 1 of education subject. Actually this paper 1 is common for everyone. So first I'll be showing you the expected answer key of paper 1. Then we are going to see the paper 2 as well. Okay, chalo, let's begin. So here the first question: if taught on reflective level of teaching, the students get tremendous power for acquisition of dash factual information, generalized insight, problem solving ability. So the correct answer is 1, 2 and 3, all the three. Question number 2, the session is planned with the aim to explore a number of ideas related to solution of a problem without passing any judgment. For this, the teacher will use which strategy? Dash strategy. Options are A, dramatization and role playing, B, project, C, supervised study, D, brainstorming. So the correct option is brainstorming. Next, question number 3. Swayamprabha is a name given to a group of DTH channels devoted to telecasting educational content. So this is correct. Let's see statement 2. Swayam provides online MOOC courses, massive open online courses, with a provision of certificate or credit transfer. So this is also correct. So option number C, both 1 and 2 are correct. Summative evaluation is dash in nature: judgmental, developmental, diagnostic, placemental. Option A, judgmental. CAI stands for, it's computer assisted instruction. Dash is not a type of research. So subjective research is not a type of research. Dash is the role of simulation software. So the option number is creating virtual models for experimentation. B is correct. Next, question number 8. Dash is a common goal of both positivistic and post-positivistic approaches to research. So correct option is to discover new knowledge and contribute to the understanding of the phenomena. Option number B. Next, the term DOI stands for dash in academic writing and referencing. So here the option number C is correct, that is digital object identifier. Dash term refers to the ethical obligation of researcher to give credit to the ideas, words or work of others. So here the option number D, attribution, is very much correct. There is a paragraph given. I'm not going to read the paragraph. You can pause the video, read the paragraph, and then we are going to see the questions. Question is, that means the passage ka pehla question, question number 11. The object of an ergonomist is dash. So the correct option here is to enable a person of ordinary abilities to carry out his task safely and efficiently. Question number 12. What is the more common or traditional policy? Go back to the video, read the paragraph and then answer the question. So the correct option is B, fitting the man to the machine. Next, question 13. Again, this is a paragraph question. What do you understand by boffins? The correct answer is engineers or scientists. Ergonomics is the study of. Question number 14. Here again the option number C is correct, relationship between man and his working environment. Question 15, the last question for this paragraph. An ergonomist himself needs a knowledge of dash. So the correct option is a number of sciences and techniques. Okay. Question number 16. If communication is defined as effective or successful transmission of a message from the sender to the other person, then which of the following becomes the fundamental criteria to decide the extent of effectiveness of the communication? Read the options and the correct answer is meaning and intent as put in by the sender in communication. Option number D.
Question number 17. Instance 1. A teacher is giving a lecture in a class of 10 students. Instance 2. A teacher is giving a lecture in a class of 100 students. Assuming all the intervening variables to be the same in both the instances, which of the following is the most likely possibility from the perspective of communication? Normally आप समझिए ना, 10 बच्चे हैं एंड एक टीचर है, 100 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन 10 बच्चों में टीचर 10 को ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगी 100 के बनिस्बत में. सो आप चारों ऑप्शंस पढ़िए, इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन इज द बी. इंटरेक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स विद टीचर विल बी हायर इन इंस्टेंस 1 देन इन इंस्टेंस 2. ओके, नेक्स्ट. Which criterion, question number 18, produces intra, intergroup and mass as 4 types of communication? Here the correct option is option C, number of participants in communication. Question 19, in the context of Indian television, which of the following did not take place in the decade of 1980? So here the option is, correct option, the launch of Ramayana, Mahabharata and serials. Okay, next. Which of the following is an incorrect statement with respect to online meeting? So here the options are, it does not incorporate non-verbal clues, it does not recognize space barriers, C, it can become multimedia communication, D, it can incorporate various means of interactivity. So here the correct answer is option A. Next, question 21. In a company, shares of Shanta, Kanta and Bharanta are in the ratio 3:5:1. Profit of the company in a certain year is rupees 3,33,333. How much is the profit of Kanta in rupees? So here correct option is B, 1,85,185. Okay. Next, question 22. A watch at a particular time indicates that it is Monday 1 p.m. What will be the indication in the watch after completing 101 hours? So here आप 101 hours देखिए, 24 hours का एक दिन, फिर 24 hours, then 24 hours, then 24 hours, ऐसे 4 दिन हो जाएंगे. 5वां दिन होगा आपका 101 hours और वो 5वां दिन मंडे ट्यूसडे, मंडे से स्टार्ट, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आपका एक ही ऑप्शन है फ्राइडे वाला एंड इट इज टाइम इज 6 PM. सो ऑप्शन नंबर डी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 23. Suppose 5 members, not members, 5 numbers are selected at random from the set of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then which of the following statements is necessarily true about the selected numbers? First option is, at least 2 of them are even numbers. There are at most 2 pairs having sum of each pair 9. There is option C, there is at least 1 pair having sum 9. And option D, at most 3 of them are even numbers. अब इसको आराम से समझते हैं, बहुत इजी है. ये 8 नंबर्स में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स हैं. 1, 3, 5, 7 4 ऑड नंबर्स हैं. ठीक है, ऑप्शन डी पहले देखते हैं कि वो सही है कि नहीं. एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 ऑफ देम आर इवन नंबर्स. अगर हम 5 नंबर्स इनमें से लेते हैं, कोई भी रैंडमली आपने लिया, तो 5 में से 4 नंबर ज्यादा से ज्यादा आपके कौन से आ सकते हैं. सपोज अगर एग्जांपल ले लें, 2, 4, 6, 8 ले लेते हैं. 2, 4, 6, 8 और 5 नंबर सेलेक्ट करना है ना, तो अगर हम 1 को भी लेते हैं तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा आप 4 इवन नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 3, तो ये ऑप्शन डी इज रॉन्ग. ओके, देन हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी. उल्टा जाते हैं या फिर देखते हैं ए से ही वापस शुरू करते हैं. एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इवन नंबर्स. अब बोल रहा है कोई 2 जो है वो इवन नंबर्स हैं, और बी बोल रहा है देयर आर एट मोस्ट 2 पेयर्स हैविंग सम ऑफ ईच पेयर 9. सम ऑफ ईच पेयर 9. अगर इसमें अगर पेयर्स देखें जो प्लस करने पे 9 आए, तो वो कौन सा पेयर हो सकता है. जैसे आप देख सकते हैं 3 में अगर आप
किसको जोड़ेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, ठीक है। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ओके, नॉट 9 होगा 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ओके। देन और कौन सा बचा, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आपको 5 कोई ऐसे रैंडम नंबर्स चूज करने हैं जिसमें अगर आप उसको में से कोई भी 2 नंबर को प्लस करने पे, मतलब एक पेयर कम से कम प्लस करने पे 9 आए, तो वो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 1 2 7 3 नंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, एडिशनल 2 अगर हम सपोज 6 और 3 सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 7 + 2 9 होता है, करेक्ट। 6 + 3 भी 9 होता है, करेक्ट। तो ये 2 पेयर्स हो गए, ओके। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 7 6 3 की जगह पे अगर मैं ले लेती हूँ 5 4, ओके। तो इसमें भी 2 7 और 5 4, ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, तो यहाँ पे भी 2 पेयर्स आ रहे हैं, सम 9। अगर मैं ले लूँ सपोज, कौन सा ले लूँ, 1 2 7, ओके, 8 1, इसमें 2 7, इसमें 8 1, तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे भी एक पेयर ये आ गया, ये दूसरा पेयर आ गया, तो यहाँ पे भी 2 पेयर्स ऑफ नंबर्स विच आर हैविंग सम ऑफ 9, करेक्ट। अगर सपोज या सो कम से कम एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक पेयर तो ऐसा है जिसमें आपको सम करने पे 9 आ रहा है, सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बी भी देख लेते हैं एक बार, देर आर एट मोस्ट 2 पेयर्स हैविंग सम ऑफ ईच पेयर 9, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी जिसमें एक भी आता है, तो इसलिए ये वाला बी इज नॉट दैट मच पॉपुलरली करेक्ट, सो हम सी के साथ जाएंगे। दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर की जब वापस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन। एटलीस्ट 2, ऑप्शन ए बोलता है एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर इवन नंबर्स, तो 2 इवन नंबर्स कम से कम नहीं हो सकते, करेक्ट। एक भी हो सकता है, आप 4 ऑड नंबर्स ले लीजिए और एक इवन नंबर ले लीजिए, तो एक कम से कम एक नंबर आपका इवन नंबर आ सकता है, तो आपका ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। देन वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में क्या बताता है कि अ बैंक इज ऑफरिंग फॉलोइंग चॉइसेस टू अ कस्टमर फॉर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स विच विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर। सो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10% per annum compounded yearly. In a right angle triangle we have 3 sides of length, namely hypotenuse, base। hypotenuse को h से डिनोट किया है, बेस को b से डिनोट किया है, h सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर, हाइट को t सेंटीमीटर से किया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट, तो वी ऑलरेडी नो हाइपोटेन्यूज को ऊपर और बेस को डिनोमिनेटर में रखेंगे, सो दैट विल बी द लार्जेस्ट वन, नॉट बेस, इसमें आ जाएगा आपका साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो h अपॉन t। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ले लीजिए, इस हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट स्लाइड होता है, 3 4 5, इसको सॉल्व करके देखिए, डिवाइड, जैसे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, करेक्ट। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, h अपॉन टी, h कितना है आपका 5, t कितना है आपका 3, इसको डिवाइड करके देखिए तो
एंड देन फिर b अपॉन टी भी डिवाइड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा h अपॉन टी का वैल्यू सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। तो हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इसका सारे का आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। b अपॉन टी का वैल्यू क्या आएगा, b इज 4, t इज 3, देन t अपॉन h, t इज 3, h इज 5, b upon h is b is 4 and h is just 5। ओके, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए एंड आपको समझ में आ जाएगा सबसे बड़ा वैल्यू आपको h अपॉन टी का आएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स इज और आर वैलिड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 26। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि ऑल टैक्स पेयर्स आर ऑनेस्ट। ये आपका वेन डायग्राम जैसा है, सारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो ऑनेस्ट है। मैं ऑनेस्ट को एच से लिख रही हूँ, टैक्स पेयर्स को टीपी से कर देती हूँ। सारे टैक्स पेयर्स ऑनेस्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलता है ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, सारे बच्चे भी ऑनेस्ट है। कंक्लूजन 1 बोल रहा है कि सम टैक्स पेयर्स आर नॉट ऑनेस्ट, सम टैक्स पेयर्स आर नॉट ऑनेस्ट। तो ये तो स्टेटमेंट 1 से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। स्टेटमेंट 1 बोला था कि सारे ऑनेस्ट है और कंक्लूजन बोलता है कि सारे कुछ उनमें से हैं जो ऑनेस्ट नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। कंक्लूजन 2 बोलता है सम स्टूडेंट्स आर टैक्स पेयर्स। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन हमको उसका लिंक नहीं पता चल रहा है। सारे स्टूडेंट्स ऑनेस्ट तो हैं लेकिन वो टैक्स पेयर्स हैं कि नहीं वो नहीं पता। So this conclusion 2 is also wrong. So the option D, neither 1 nor 2 is correct. Next. In a ranking of a competition examination, Vishal was above Vijay. विशाल जो है आप इसको लगा लीजिए, विशाल किसके ऊपर है, विजय के ऊपर है, ठीक है। बट बिलो श्याम, लेकिन विशाल जो है वो श्याम से नीचे है, मतलब श्याम उसके ऊपर है। मोहन वॉज अबव श्याम, मोहन जो है श्याम के ऊपर है। बट बिलो रोहन, लेकिन रोहन से नीचे है। कौन, मोहन रोहन से नीचे है। विजय वॉज बिटवीन विशाल एंड अशोक, विजय जो है विशाल और अशोक के बीच में है, ठीक है। अभी आपका ये सीक्वेंस बन गया, रोहन, मोहन, श्याम, विशाल, विजय, अशोक। क्वेश्चन पूछता है हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थर्ड नंबर पे कौन है। 1 पे रोहन, 2 पे मोहन, 3rd पे श्याम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, श्याम। नाउ क्वेश्चन 28। इन अ कोड लैंग्वेज इफ मुंबई इज कोडेड एज LVLCZJ, तो हम पहले मुंबई लिख लेते हैं यहाँ पे, मुंबई, ओके। अब लिखते हैं हम लोग L, M के नीचे VLCZJ, L के बाद M। आप एरो ध्यान से देखिए, मैं एरो कैसे बना रही हूँ, उसका आपको पैटर्न सीक्वेंस समझ में आ जाएगा तो आप सांगली का कोड तुरंत बता पाएंगे। UVLMBC, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, ZAIJ। अब सांगली का आपको वैसे ही बना लेना है, SANGLI, ठीक है। तो S के पहले क्या आता है, R, ओके। देन एरो नीचे जा रहा है, A के बाद क्या आता है, B। अभी RB से कोई ऑप्शन है क्या आपका, यस है, तो आपको पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, आपको यहां से ही पता चल गया। 28CRBMHKJ इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 बोलती है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, रागिनी फेसिंग ईस्ट। अभी आपको पता है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। रागिनी इधर खड़ी है, रागिनी फेस कर रही है ईस्ट के तरफ, ठीक है। वॉक्स 10 मीटर, ईस्ट की तरफ 10 मीटर वॉक की। टर्न्स टू हर लेफ्ट, उसका लेफ्ट किधर आएगा, इधर। एंड वॉक्स 12 मीटर, 12 मतलब 10 से थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है।
देन शी टर्न्स टू हर राइट इन 45 डिग्री. 45 डिग्री बोला है. अगर मैं ऐसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ तो ये 90 हो जाएगा. करेक्ट. तो स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना है हमको. 45 बोला है तो 90 का हाफ और उसके राइट में. तो 45 हो गया. ये कितना चली यहाँ पे 45 में? 15 मीटर. तो अब ये पूछेगा, क्या पूछ रहा है इसमें? देन हाउ मच डिस्टेंस शी हैज वॉक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पर था. एंड विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ. अभी यहाँ पे वो पहुंच गई है. टोटल ये कितना चली? 15 प्लस 12 प्लस 10 कितना होता है? 5 + 2 7 3 37 मीटर. और ये साइड है नॉर्थ. यहाँ पे पहुंची ईस्ट में. सो ऑप्शन ए 37 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये चल चुकी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स विल कंप्लीट द न्यूमेरिकल सीरीज गिवन बिलो 11 14 25 -133. सो इसका द करेक्ट आंसर इज 52. Next, directions questions. Question number 31 and 32. Out of the 20 villages in a certain state, salesman A visited 14 villages, salesman B visited 12 villages. None of them visited 2 villages. So question 1 is, how many villages were visited by both the salesmen? सी सेल्समैन वाले पहले जो 30B का क्वेश्चन था वहां पे आप x कैसे ढूंढेंगे? सपोज दिस इज 11 + 3 करेंगे तो 14 आ जाएगा. 14 + 11 कीजिए तो आपको मिलेगा 25. 25 में 27 प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 52. 52 इज नथिंग बट द x ब्रैकेट वाला. 52 + 81 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 133. ओके. नाउ 31B सेल्समैन वाला क्वेश्चन अभी मैम ने पढ़ा था. सो दिस इज द सॉल्यूशन. लेट A बी द सेट ऑफ विलेजेस. ओके. लेट A बी द सेट ऑफ विलेजेस. लेट B बी द सेट ऑफ द विलेजेस बाय सेल्समैन B. ओके. इट इज गिवन दैट A विलेज को कितना 14 हमने डिनोट कर दिया है. बी मॉड को हमने 12 से डिनोट कर दिया है. टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इज 20. ओके. ऑल्सो नो विलेजेस वर विजिटेड बाय नाइदर ऑफ द सेल्समैन. द नंबर ऑफ विलेजेस विजिटेड बाय बोथ सेल्समैन इज A इंटरसेक्शन B. सो ये इंटरसेक्शन यूनियन वाला क्वेश्चन आ गया है आपको. The total number of villages visited by at least one salesman is A union B. The total number of villages is 20. Okay. A union B आपका 20 से कम भी हो सकता है या 20 जितना भी हो सकता है आपका क्या? A union B. तो आपका फॉर्मूला बैठेगा ऐसे 2 सेट्स का. A union B is equal to mod A plus mod B minus A intersection B. Since no villages were visited by neither of the salesmen, so A union B is 20. Okay. Then put the values. 20 is equal to 40 plus 12 minus A intersection B आपको find out करना है. A intersection B को एक तरफ लीजिए. 26 minus 20 is 6. So number of villages visited by both salesmen is 6. अभी आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ विलेजेस विजिटेड बाय एटलीस्ट वन सेल्समैन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32. उसका ऑप्शन इज सी. सी इज द करेक्ट आंसर. तो हम उसको लेट करके सपोज करेंगे द नंबर ऑफ विलेजेस विजिटेड बाय एटलीस्ट वन सेल्समैन इज A यूनियन B. ओके. कैलकुलेशन आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही रहेगा. A यूनियन B को हमने 20 कंसिडर किया है. सो A यूनियन B वो वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B. सो A यूनियन B इज इक्वल टू पुट द वैल्यूज 14 प्लस 12 6 हमको मिला था पिछले क्वेश्चन में से. 26 माइनस 6 इज 20. ओके. सो आई होप दीज 31 and 32 क्वेश्चंस आर वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
क्वेश्चन नंबर इज 33 एंड 34। अभी ये आपका एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज एनुअली एज वेल एज द ईयर ऑफ दैट एम्प्लॉय, ठीक है, 2018 से लेके 2022 तक। ये आपका ABCDE ये एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एंड ये आपकी ईयर्स दिए हैं। दीज नंबर्स क्या हैं, ये वर्किंग डेज हैं कि ए एम्प्लॉय 2018 में कितने दिन काम किया, 2019 में कितने दिन आया, 20 में कितना दिन आया, 21 में कितना आया, 22 में कितना आया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। दिस इज द वेरी वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन देखते ही आ जाएगा। विच एम्प्लॉय हैज मैक्सिमम वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर्स 2018 to 22। तो आपको करना क्या है, आपको ये सबको ऐड कर लेना है। ए कॉलम को ऐड करके टोटल निकाल लीजिए, बी कॉलम को ऐड कीजिए और उसका टोटल निकाल लीजिए, सी कॉलम को ऐड कीजिए, टोटल निकाल लीजिए, डी कॉलम को ऐड करके टोटल निकाल लीजिए, ई कॉलम को ऐड करके टोटल निकाल लीजिए। जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें आप इसको प्लस करेंगे तो आपको ई का आंसर मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली 1605। बाकी सारे वैल्यूज विल बी लेसर, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ई। Okay, D option, answer E. Which employees have equal number of total working days during 2018 to 22? इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपने एक बार सब टोटल जो कर लिया उसी में ये टोटल में से आप देखेंगे। इसमें द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपको C और D का जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 1555, C का भी और D का भी। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सी एंड डी। ओके, देन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स पर 1000। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपलर क्वेश्चन। ईयर दिया हुआ है आपको, बर्थ रेट दिया है, डेथ रेट दिया है। फ्रॉम द अबव टेबल इन विच ईयर्स डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट द सेम। डिफरेंस पूछा है, माइनस करना है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो अभी आप सबको माइनस करते मत बैठिए, जो ऑप्शंस दिए हैं 2011-21 चेक कर लीजिए, 2001-11 चेक कर लीजिए, 1971-1981 चेक कर लीजिए, 1961-1971 चेक कर लीजिए। सो करेक्ट आंसर इज डी। मैं आपको डी का करके दिखाती हूँ, आप ABC खुद से ट्राई करके सॉल्व करके देखिए, ठीक है। 1961 किधर है, यहाँ पर। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, 90 माइनस 20 कितना आता है, 70। 1971 का चेक कीजिए, 88 माइनस 18, इसका भी कितना आ रहा है, 70। सो बोथ द रेट्स आर सेम। सो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ABC मैं आपको नहीं सॉल्व करके बता रही हूँ, आप खुद से माइनस करके देखिए, द नंबर्स विल नॉट कम सेम, सो दोज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। Identify the incorrect pair of file format and corresponding file form. Option A, JPEG image file. This is correct. Option B, PPTX presentation file. Correct. FLV video file को बोलते हैं, but WT audio file को नहीं बोला जाता है। Word processing documents को हम represent करते हैं WPT. Word processing documents. तो ये ऑडियो फाइल इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, in the context of information technology, what is cloud computing? So here the option C is correct. It is internet based computing which provides shared computer processing and data to digital devices on demand. Question 38. What is the name of the international encoding standard for use with different languages and scripts by which each letter, digit and symbol is assigned a unique numeric values that applies across different platform, device or languages? So here the option B, Unicode, is very much correct. Next, which of the following options show the correct chronological order of communication technologies? So here the option number B is much better.
telegraph, movie, camera, radio, television. Okay. Next, 40. Which of the following is not the typical feature of Web 2 environment? Option A, users remain as simply passive consumers of the content. Rest all the three options are incorrect. Question 41. International Solar Alliance headquarters is located at Haryana, India. Option A. Which city hosted the United Nations Climate Change Conference COP21 where the Paris Agreement was negotiated and adopted? So here option number C. आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा था पेरिस वर्ड. So ये Paris is the correct answer. Which schedule of the Environment Protection Act 1986 lists industries that requires mandatory environment clearance? So here schedule 1 is the correct answer. How does nutrient pollution affect the marine ecosystem? Option C, triggers harmful algal blooms. 45. Which of the following is the effect of air pollution on leaves that causes the killing or collapse of tissue? Option A, necrosis. Next, during British period in India, Lord Curzon had organized dash for the development of Indian education. So here option C, Simla Educational Conference is the correct answer. 47. The Sadler Commission was a commission set up to inquire into dash. So here the conditions and problems of the University of Calcutta is the correct one. Last three questions for today. In Buddhist educational tradition, in order to become a guru, the person had to undergo through the following series. So correct option is Brahmachari, no, Shraman, Bhikkhu and Upadhyay. Option number D. In Vedic educational tradition, the word Upanishad literally means sitting near Guru to learn. Option B is the correct answer. Last question for paper 1. According to Jainism education tradition, the first method of learning is dash. So option B, Deshana, Shravan or careful listening of advice. So I hope the answers are very much clear. You can just comment me down how much marks you are expecting from your paper 1 out of 50. Chalo, bye, take care, be in touch. I will be discussing paper 2 of education subject very soon. Actually this was not from 50 out of 100. Okay, you need to tell me how much marks you have scored. Chalo, bye, take care, be in touch, keep watching, keep studying. I'll be discussing paper 2 very soon. Bye.